کہ یہاں نہ کسی کی بدماشی کرنے دوں گا میں کسی کو، نہ کوئی یہاں بدماش ہے، اور نہ ادھر کوئی چودھری بنے گا کہ آپ ٹھیکیدار ہو یا گورکن ہو، انشاءاللہ تعالی آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ یہاں میں KMC کو بھی کہتا ہوں، اداروں کو بھی کہتا ہوں، نوٹس لے بھائی، یہاں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک قبر سے ایک پیارے کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دینا، وہ دعائیں کرنے آ رہے ہیں، اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پیارا ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ادارے جو ہے وہ بھی ذرا جاگ جائے، اس پہ نوٹس لے۔ میں نے ویڈیو بنائی ہے ابھی، آپ اس چیز کی ٹینشن میں آپ دن کو آ جاؤ، میں آپ کو ان کی سلیپیں صاف کر دیکھو ٹینشن تو مجھے ہے ہی نہیں نا، میں ٹینشن لیتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کی قبر پہ کیسے آئے۔ لیکن یہاں جو گورکن ہے اور جو ٹھیکیدار ہے وہ تو بدماش اور چودھری بنے ہوئے ہیں، وہ تو ایسے چودھری اور بدماش بنے ہوئے جیسے انہوں نے تو اس قبر میں جانا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے تو لکھ کے لایا ہوا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ دونوں موجود اس لیے ہے کہ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پورے بلدیہ ٹاؤن کو بھی کھڑا کرنا پڑا، پورے بلدیہ ٹاؤن کی عوام اور یوتھ کو بھی پھر میں نکالوں گا۔ قبرستان میں جو قبروں میں پڑے ہوئے ان کو حفاظت اور انصاف دینا یہ ہمارے زندوں کا کام ہے بھائی۔ ہمارے آپ سے کوئی نہ دشمنی ہے، ہمارے بھائیوں، یہاں میرا مقصد کسی کو نیچے کسی کو اوپر دکھانا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں قبرستان میں، جہاں ہر کسی کو جانا ہے اور موت کا مزہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، حساب کتاب کی جگہ ہے، یہاں ہر ذی روح نے حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن یہاں بڑا تعجب ہوا مجھے آج، میں ایک مسئلے کی بنا پر یہاں قبرستان پہنچا ہوں۔ یہ بھائی ہیں ہمارے، سنی نام ہے، ان کی والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے، اور یہاں یہ قبر ہے جہاں دفنایا گیا تھا۔ تو یہ جو واقعہ آج پیش آیا ہے کہ اس بیچارے نے اپنے والدہ صاحبہ کی قبر کو بنانا تھا تاکہ ایک نشانی رہے، اور یہ بیٹا آئے اور جو تدفین ہوئے ان کے والد صاحب آئے قبر پہ، ان کے پیارے آئے اور فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرے۔ لیکن یہاں جو گورکن ہے اور جو ٹھیکیدار ہے وہ تو بدماش اور چودھری بنے ہوئے ہیں، وہ تو ایسے چودھری اور بدماش بنے ہوئے جیسے انہوں نے تو اس قبر میں جانا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے تو لکھ کے لایا ہوا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ یہ بھی یہ خود اپنے منہ زبانی سنائیں گے کہ کیا واقعہ ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ آپ ذرا آگے آ جائیں، اور یہ سنی اب یہ بتائیں گے۔ بھائی ذرا آپ بتائیں تھوڑے سے تیز آواز میں، کیا واقعہ پیش آیا، آپ پھر آئے ہمارے پاس، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی میں اس مسئلے کے حوالے سے آیا ہوا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے آیا تھا والدہ کی قبر پر، کیونکہ میں روز ہی ہر 2 دن بعد 3 دن بعد آتا ہوں۔ تو انہوں نے برابر میں جو ہے ایک دوسری قبر کھودی ہے، تو میں آ کے اس سے میں نے بات کی ہے، یہ میرے ساتھ کر رہا تھا بدماشی، بولتا ہے یار بھائی میں نے یہ قبر کھودی ہے، اس بندے نے مجھے پہلے ایڈوانس میں ہی پیسے دیے ہوئے، اس کی والدہ جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یعنی کہ ابھی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اس کی، اس نے پہلے ہی پیسے دے کے اپنی والدہ کے لیے قبر کا اخراج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے بات کی کہ یار اگر اب آپ جو ہے نا یہ قبر بناتے ہو تو پھر میں اپنی والدہ کا قبر کس طرح بناؤں گا، میرے پاس تو جگہ کم پڑ رہی ہے، مجھے تو 2.5 سے 3 فٹ جگہ چاہیے قبر بنانے کے لیے۔ تو اس نے میرے سے یہی بدتمیزی کی ہے، اور دوسرا یہاں پہ 2-3 بندے اور بھی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جب قبر یہ والے کھود رہے تھے تو میری والدہ کا قبر جو ہے نا سائڈ سے کھلا ہوا تھا، کیونکہ ابھی تو تقریباً 30 دن بھی نہیں ہوئے والدہ کو، تو یہ سائڈ سے کھود کے، اب لیڈیز کی قبر ہے تو اس کو آپ سائڈ سے کھود رہے ہو، یہ تو کوئی اچھی بات تو ہے نہیں، یہ تو مسلمانی کی بات ہوئی نہیں۔ تو میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے آگے سے مجھ سے بدتمیزی سے بات کی ہے کہ بھائی آپ جاؤ جو کرتے ہو کر لو، میں تو بھائی یہاں پہ قبر کھودوں گا، مجھے پیسے ملیں گے۔ اچھا تو لیڈیز کی قبر بتایا اس نے مجھے، تو ابھی 2 دن پہلے جو ہے نا یہاں پہ جینٹس کی قبر آئی ہے، تو وہ جینٹس آ گئے ہیں، ان کے بھی بندے آئے تھے میرے پاس، وہ بھی آ بھی جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بولا کہ یار ہم نے ان کو پیسے ابھی دیے، یعنی کہ مطلب جیسی رات کو میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے ہم نے آ کے اس کو پیسے دیے، یہ قبر بک کر دیا۔ تو یعنی کہ اس نے میرے سے جھوٹ بولا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میری والدہ کا جو قبر تھا ادھر سے مردہ نکالا ہے انہوں نے، اور میری والدہ کو جو ہے نا جگہ دی ہے، یہ بات انہوں نے مجھے پہلے نہیں بتایا، اگر مجھے بتاتے تو میں اپنے لیے جگہ کا ارینج کرتا۔ اور جو دوسرا سائڈ میں قبر ہے وہ بچے کی قبر تھی، وہ بچے کو بھی انہوں نے نکالا ہے، اس کی جگہ کسی اور کو ان لوگوں نے دفن کی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں عارف شاہ صاحب سے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟
अच्छा भाई देखे, ये तो सनी है, ये आए हैं, इंसाफ तो करने वाला अल्लाह की जात है। हमारे बस में जो है मेरे नबी के हदीस से एक काम गलत होते हुए देखो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, तो हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको, नहीं तो दिल से बुरा कहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से रोकने की ताकत भी अल्लाह ने दी है, जबान से रोकने की ताकत भी अल्लाह ने दी है, और दिल से जो बुरा कहना वो तो आखिरी दर्जा है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि यहाँ न किसी की बदमाशी करने दूंगा मैं किसी को, न कोई यहाँ बदमाश है, और ना इधर कोई चौधरी बनेगा कि आप ठेकेदार हो या गोरकन हो। इंशाअल्लाह ताला आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, हर किसी ने मरना है। तो यहाँ बदमाशी किसी की नहीं चलेगी। और दूसरा, मैं यहाँ पूरे आवाम को यहाँ कहना चाहता हूँ, 7 नंबर के अतराफ के या अब्दाबाद कब्रिस्तान के अफराद है, खासकर 7 नंबर के अतराफ में जितने लोग हैं, खुदारा जब आपका कोई अपना मरे अल्लाह तमाम लोगों की बख्शिश करे, लेकिन आपने 7 नंबर कब्रिस्तान नहीं लाना। यहाँ मैं केएमसी को भी कहता हूँ, इदारों को भी कहता हूँ, नोटिस ले भाई, यह जगह खत्म हो गई है। एक कब्र से एक प्यारे को हटा के दूसरे को लगा देना, वो दुआएं करने आ रहे, अंदर पता ही नहीं है कि उनका प्यारा है या नहीं है। तो भाई ये इदारे जो है वो भी जरा जाग जाए, इस पे नोटिस ले, चाहे वो केएमसी है, वो कोई और इदारा है, टीएमसी है, कोई भी है, वो इस पे नोटिस ले। और बाकी आवाम से भी कहता हूँ, इंशाल्लाह मैं भी तैयार हूँ कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए। ये जो कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, जितने मर चुके हैं, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, इनकी हिफाजत भी हम जिंदों की क्या है भाई जिम्मेदारी है। तो यहाँ ये मेरा मैसेज है पूरी आवाम को, मैं कहता हूँ यहाँ अपने अब किसी को नहीं लेके आना। जिसको लेके आओगे पहले आप इंक्वायरी करो, यहाँ जगह नहीं है। आप जाओ अब्दाबाद, वहाँ पर भी जगह खत्म है, अगर कहीं है तो ठीक है, आप खुद विजिट करें, नहीं तो फिर आप माच गोड का रुख करें, स्पार्को का रुख करें, वहाँ अपने प्यारों को दफनाएं, ताकि आप जाएं, आपको पता हो कि वो हमारा प्यारा है। तो ये आज का मैसेज था। इस भाई को इंसाफ तो इंशाल्लाह अल्लाह देगा। बाकी हम हाजिर हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी जबान का बोलने वाला है या किसी भी मजहब से ताल्लुक है, इंसाफ की बात जहाँ आएगी वह इंशाल्लाह हम खड़े हैं अपने हर भाई के लिए, अपनी हर बहन के लिए। इंसाफ भी लेकर देंगे, दरवाजा भी ठकठकाएंगे, और चौधरियों और बदमाशों को या चौधराहट और बदमाशी नहीं चलेगी। यहाँ राज चलेगा किसका भाई? अल्लाह का। रिवाज चलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का। बाकी तीसरा हम किसी को नहीं मानते इंशाल्लाह। तो ये आज का मैसेज था। इस वीडियो को शेयर इसलिए नहीं करे मेरी वाह, इसलिए शेयर करे कि कब्रिस्तान वाले भी जाग जाए, ये ठेकेदार भी जाग जाए, ये गोरकन भी जाग जाए, नहीं तो इनके खिलाफ फिर हम पूरी आवाम इंशाल्लाह कैंपेन चला के एक्शन लेंगे। इंशाल्लाह तैयार है भाई उसके लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अब वहाँ बनाने की अच्छा, एक चीज और भी सर यहाँ देखी जाए तो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, और यहाँ एक दूसरे के प्यारों को लाके दफनाया जा रहा है। अब ये देखें, कब्र के ऊपर से जाना पड़ रहा है, हालांकि कब्र के ऊपर चढ़ना जायज नहीं है उसके बावजूद भी, लेकिन एक मजबूरी बन चुकी है कि अब जगह नहीं है तो बंदा कहाँ से जाएगा। ये भी खबर है। अब ये देख ले, ये कब्र है लेकिन कब्र का निशान गायब है। के साथ में इनकी जो 2.5 फीट पुलिस लगी है ना, इंशाल्लाह वो अपनी सही है ना, फिर इनके साथ 2.5 फीट दूसरी है। इधर ऐसी भी होती 3 कब्रें भी एक साथ बनाते ना, जोड़ी में जैसे 3 कब्रें एक साथ, तो किसी को लंबी फीट लगा के दफनाते, जैसे अभी 2.5 फीट वाली इनको लगी है, किसी को 2 फीट वाली भी लग जाती, पतली कब्र जो बनती। अयाज भाई मुझे ये बताया कि ये लोग अगर एक बंदा कब्र बनाते दूसरा नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकते? मैंने वीडियो बनाई है अभी। आप इस चीज की टेंशन में आप दिन को आ जाओ, मैं आपको इनकी स्लीपें साफ कर। देखो टेंशन तो मुझे है ही नहीं ना, मैं टेंशन लेता हूँ। मसला ये है कि लोग अपने प्यारों की कब्र पे कैसे आए। अब ये दोनों फरीक यहाँ खड़े, दोनों का ये मसला है। अगर ये पूरी कब्र बनाएंगे तो इनकी पूरी नहीं आ रही, ये भाई पूरी बनाएंगे तो इनकी नहीं आएगी। अभी बीच में दीवार एक रखनी पड़ेगी मेरे भाई। और दूसरी चीज ये, तो एक तो निकाल के दूसरे को रखा जा रहा है,
तो ये अगर अल्लाह ना करे 6 महीने बाद आता है तो वो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं ये तो गोरकन की बात है, इन्होंने इन्हीं को बोला। इनको मैंने तो पूरी तरह मुतमईन किया भाई आप मुझसे सुबह आ ये बात जाओ। की है, दोपहर में जब मैं आया था शाम के टाइम पे आपने मुझसे ये बात की है कि यार केएमसी की तरफ से ये बंद है, हम चला रहे गवर्नमेंट की थे। तरफ से तो ये 1995 से बंद है, जैसे बंद है गवर्नमेंट ना? की तरफ से बिल्कुल। और दूसरी बात आपने मुझसे ये की है कि यार एक कब्र से हम निकालते हैं दूसरा डालते हैं, आपकी वालदा के लिए भी जो है ना हमने इसको निकाला और दूसरे को डाला, ये बात आपने ऐसा की है। होता है, पर जो पुरानी शहीद कब्रें होती हैं वही छूटती हैं, वही बनती अब हैं। ये मैं अब से देखो, तो मेरी नहीं, बात तो एक सुनो। निजाम आपकी बात चलो मैंने नहीं, मान ली। अयाज भाई अब तो मैं मुझे ये कैसे बताओ, मानूं? गवर्नमेंट में खाते में बंद है तो फिर आप रजिस्टर और स्लिप कैसे दें? रजिस्टर हमें टाउन की उसकी तरफ से आई हुई है, हमारे चेयरमैन पहले यहाँ पे थे, उनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कब्रिस्तान तो पूरा निजाम गवर्नमेंट के पास ही पर्ची जाती है। नहीं, वाली अभी मुझे ये बताओ, आपको रजिस्टर चार्ज किसने दिया हुआ है कि आप कब्रें खोदो, उधर उनको भी जाते हैं पैसे, सिस्टम जाता है? जी टाउन की तरफ से हम बैठे हुए हैं, हमको फ्री तरह से। अच्छा, अभी आप टाउन की तरफ से जी बैठे। जी हमारे पास रजिस्टर है, सरकारी रजिस्टर, उनको हमने पर्ची दी, वो भी सरकारी है। तो मुझे ये बताया उनकी तरफ से ये आपको इजाजत है कि एक मुर्दे को निकालो और दूसरे को दफन करो, ये है? भाईजान आप मेरी बात सुनो, मुर्दे बाहर नहीं आते, ये पुराने कब्रिस्तान ये तो है, ये अभी पुराने ये खुद कह रहे हैं ना, मैं तो आप नहीं मेरी कह रहा बात हूँ। सुन रहे हो, अब मेरी बात सुनोगे, अब हाँ। मेरी बात पहले सुनो, मैंने आपसे मुझे मेरी भी तो सुन लेना दो। पुरानी कब्रें, बहुत पुरानी कब्रें, वहाँ तक कोई नहीं जाता। कोई अगर इतनी मैयतें दफन होती है, अगर ऐसी मैयतें बाहर निकले तो अल्लाह के वली यहाँ पे पूरा निजाम जी, या आपने होता है बोल ना। दिया। अब ये मैं कैसे मानूं कि आप पुरानी कब्रें निकाल रहे हो, ये तो मेरे अल्लाह को ही पता है। जिस तरह का आपने गोरकन यहाँ पर रखा हुआ है, जिस तरह वो बदतमीज है, गोरकन है ही, अभी देखो वो जायल बंद है, आप जंगल उसको मैंने हटाओ ना, आपसे- जब जायल बंद है तो आपने मैंने आपसे क्यों रखा पहले हुआ है? मैंने आपसे पहले वो भी जिस तरह एक बंदा मेरे पास अयाज आया था भाई शाम देखो, को। हमारे जी। आपसे कोई ना दुश्मनी नहीं, है, भाई, ठीक आप है हमारे हमारे साथ भाइयों, आंखों पे- यहाँ मेरा मकसद जी जी किसी को नीचे किसी को ऊपर दिखाना नहीं, यहाँ नहीं, मेरा नहीं, आप मकसद ये हमारे है भाई हो, बिल्कुल। 7 नंबर की यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग यहाँ दफन है ना, बिल्कुल बजा यहाँ हमारे अपने भी दफन है। हम बिल्कुल, ये चाह बिल्कुल। रहे कि कोई अपना अपने कब्र पे आए, उसको पता हो कि हाँ मेरा अपने ही है अंदर। इंशाअल्लाह ताला इनको सुबह ये आ जाए, मैं इनको पूरी कब्र इनकी साफ करके साथ जिनको बनानी मैं बना के दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। इंशाअल्लाह ना इनको नाराजगी होगी ना उनको होगी। भाई इंशाअल्लाह ये ताला, अयाज अल्लाह का साहब है, ठीक है, इन्होंने जो डिटेल आपको सामने रखी, किसके अंडर काम करते हैं, किसने जिम्मेदारी दी है, 1995 से बकौल इनके के बंद है कब्रिस्तान, उसके बावजूद भी ये लोग क्या तरतीब कर रहे हैं, ये दोनों आपके सामने फरी। तो भाई मैं यहाँ सबको ये मैसेज दूंगा, खुदारा आप अपने प्यारों को वहाँ दफनाएं जहाँ जगह हो कब्रिस्तान की, और आप जा सकते हो सुकून से वहाँ दुआ कर सकते हो, और आपका दिल भी मुतमईन हो कि हाँ भाई ये मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरा जो है भतीजा है, भांजा है, आपका दिल मुतमईन हो। खुदारा इन चीजों से निकलो, और ये 7 नंबर के अड़ोस पड़ोस में जितनी आवाम है, खुदारा अपने अड़ोस पड़ोस के लिए आप खुद जागो, खुद आवाज लगाओ, क्या मसाइल है उसके लिए निकलो। तो भाई ये कब्रिस्तान का मामला है, अयाज भाई से भी मैं यही कहूंगा कि अयाज भाई जहाँ जगह ना हो, आपसे मैं इस चीज पर रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्यों, ये कब्र का मामला है कि यार कोई एक दफन हो, उसको हटा के दूसरे को न दफनाया जाए। ये मेरी आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट होगी। इंशाअल्लाह ऐसा कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ठीक है। ताला। इतनी टाइम से चला रहा हूँ, 35 साल से बैठा हूँ, ऐसी कंप्लेन आप भी तो यहीं पे बड़े हुए। एक मिनट मेरी बात सुने, आप भी तो बोल रहे हैं ना, आपकी भी आपने पहले कभी इससे पहले कंप्लेन सुनी कब्रिस्तान की? नाराज मैंने कंप्लेन नहीं सुनी, इसलिए मैं आया भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला वैसे ये आइंदा नहीं होगा। आज ये कंप्लेन 2 बंदों की आई है तो मैं आया हूँ। इनकी अगर कब्र निकली हो तो इनकी सिर्फ टच कब्र है। देखो आप शायद विजिट नहीं किया, जिनको कभी आए ना मैंने तो आपको- कर लिया है, क्योंकि इनकी वालदा आप साहिबा को जिनका- जब दफना रहे थे, जी, जी। मैं खुद कब्र के पास था, बिल्कुल ठीक सर, हो हमको गया, तो मैं बिल्कुल आया वो तो हूँ। हम चाहे तो बिल्कुल आना सही पड़ेगा। है। तो सारे तो अयाज भाई आपसे भी हम यही कहेंगे, इंशाअल्लाह। कब्र का मामले मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, हर बिल्कुल, किसी को बिल्कुल, मरना है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। कोशिश करें वो काम करें जिससे अल्लाह राजी। इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से कोई शिकायत ठीक है आइंदा भाई। नहीं होगी। ये भाई नाराज हुए तो हम उनसे माजरत चाहते हैं। कोई- बहरहाल कोई- मैंने तो उसको कोई- जब कोई- भी है, आपको गौरकन मैंने से यही मेरे को कहा कि शिकायत आप हमारे भाई हो। गोरकन ये जो कह रहे हैं ना, जो बदमाश बना हुआ है, नहीं, बदतमीजी कर रहे थोड़ा हैं, सा वो जंगली उसको भी साहब आप है। समझा मैं दो इंशाअल्लाह अपने ताला मैं अपनी ठीक है, इंशाअल्लाह। बेफिक्र हो जो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इज्जत करे, अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा जी, अभी वो जो एक भाई थे जिनकी वालदा साहिबा की डेथ हुई थी वो तो ये रहे, दूसरे भाई थोड़ा सा करीब आइएगा। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अवैस भाई हमारे पास आए, आपके भाई की डेथ हुई थी, मेरे मामू के बेटे। आप इनके मामू के बेटे की डेथ हो गई थी। केएमसी के सिस्टम में कब्रिस्तान में जगह नहीं है, खत्म है, उसके बावजूद कब्र भी खोदी जा रही है, पैसे भी लिए जा रहे हैं, 18, 20, 25 हजार पर्चियां भी दी जा रही है। सिस्टम का पता नहीं है कि सिस्टम कहाँ है, क्या सिस्टम चल रहा है कब्रिस्तान का,
कुछ समझ नहीं आ रही। ये भाई बताएंगे कि इनको क्या बताया गया, क्या तरतीब हुई गई। पैसों के जो इनको बताया कि भाई एडवांस में एक बंदा जो है वो दे के गए, उसकी वालदा की डेथ हो गई है। और ये भाई जो आए हैं मामू के बेटे को, मतलब कज़न की जो डेथ हुई है, उस हवाले से आप बताएं जी। मैं तो आया भाई सुबह के टाइम यहाँ पे आया कबर के लिए, सही है, कबर के लिए आया। मैंने वहाँ मेरे दोस्त बैठते ना पीछे, उनसे मैंने रब्ता किया, मैंने बोला यार गोरकन, तो उन्होंने कहा कि गोरकन बुला रहा हूँ। उन्होंने बुलाया, गोरकन से बात हुई मेरी, तो उन्होंने भेजा, मुझे बंदा भेजा और वो कबर दिखाई। उस टाइम मेरी कोई बात नहीं हुई इनसे कि मैं कबर पहले से बुक करवाई ना कुछ, समझ लो रात को उसका इंतकाल हुआ और सुबह हम लोग जैसे कबर के लिए लोग जाते हैं हम वैसे ही आए। कबर हमने करवाई, पैसों की बात 25,000 लोगों ने बात की, जैसे जैसे अपने थोड़े मिन्नतें करके 18,000 पे करवाए। लोगों ने बोला ठीक है, कबर हो गई। दोपहर में मैं आया हूँ, जैसे ही तस्वीर होती है वैसे हुई है। उसके बाद कोई बात नहीं, हम लोग गए, पर्ची बना के दिए, सब क्लियर। हमारी जैसे बाइक ने हमको बताया कि ये बोला है कि वालिदा की ये 2 दिन पहले ही आके, कौन ऐसा बंदा है इसको पता होगा कि 2 दिन बाद मेरी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। ठीक है, उनको ये कुछ और बोला है और हमारे साथ कुछ और बात हुई है। तो भाई ये दोनों जो है लोग मौजूद है कि वालदा साहिबा की डेथ, उसकी भी स्टोरी मैंने बता दी है, भाई की भी, कि यहाँ जो है लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई एक बेटा अपनी वालदा की कैसे 1 हफ्ते पहले 4 दिन पहले कब्र खुदवा सकते हैं। तौबा इस्तगफार, ये तो वही बात हुई कि वालदा को खुद मारने गए हैं वो। तो ये क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ ये दोनों मौजूद इसलिए है कि मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता। इसके बाद इंशाल्लाह पूरे बल्दिया टाउन को भी खड़ा करना पड़ा, पूरे बल्दिया टाउन की आवाम और यूथ को भी फिर मैं निकालूंगा। कब्रिस्तान में जो कब्रों में पड़े हुए उनको हिफाजत और इंसाफ देना ये हमारे जिंदों का काम है भाई। अगर आज हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे, कल हमारा भी हिसाब होगा। तो इसीलिए ये पूरा मैसेज पूरा बल्दिया टाउन के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ मेरे नबी की उम्मती है, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि खुदारा कब्रों का एहतराम करे। और गोरकन और ठेकेदार जो है वो चौधरी और बदमाश न बने, न बदमाशी करें, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है। आखिरत की फिक्र करे।